الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار، عرب کے ناقے سوار بیچینوں کی فرار، رسولوں کی سردار انسانیت کے وقار، دونوں جہان کے مالک و مختار، ہم غریبوں کا بابا ہم یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس، سیاہ لامکاں مالک انس و جاں، راحت قلب و سینہ حبیب پروردگار، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دوہربار میں ایک بار بآواز بلند محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باقر وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اہلی جناب اطہر صاحب کی دختر نیک کی شادی کے موقع پر یہ محفل پاک کو رچایا اور سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول و مقبول عطا فرمائے. حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے اور آپ بیٹھ جائیں اور مجھے آپ برداشت کر لیں، اور پھر اس کے بعد زیادہ دیر اس لیے کہ میں آپ کو یہاں پہ اتنی دیر بیٹھانا نہیں چاہتا ہوں، اور آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دو چار شعر میں کہ آپ کس انداز میں سننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس اور آگے آ جائے تو ماشاءاللہ اچھا رہے گا. اور آگے آ جائے ماشاءاللہ، بہت بڑھیا ہے. آ جائیے ماشاءاللہ آ جائیے. تھوڑی دیر ہی سنیے لیکن لذت ملے. اگر آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں اگر لذت نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک جہاں رچائی جائے اور سجائی جائے تو وہاں پہ اتنے اطمینان کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو اس کا مزہ ملے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. یہ دو چار شعر سماعت کریں. اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے مسکن کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے، دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے، دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے. کہ کیا دکھائے گا کوئی راہ مدینے کی مجھے، کیا دکھائے گا کوئی راہ مدینے کی مجھے، پانی خود بہہ کے سمندر کی طرف جاتا ہے، پانی خود بہہ کے سمندر کی طرف جاتا ہے. حضرات محترم، آئیے اور اگلا شعر سماعت کریں. مدینے میں درودوں کا جو تحفہ
भेज देता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है। खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है और खुदा देता है बरकत। आप देखिए खुदा देता है बरकत कैसे, किनको बरकत देता है। अब जरा इस शेर पे आप तवज्जो के साथ सुने। खुदा देता है बरकत ऐसे पेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे पेटों की कमाई में, जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है, जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। हजरत मोहतरम आइए बड़ी तेजी के साथ हजरत आप बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक आपने नाते समाअत की है। अब आइए थोड़ी देर आपके सामने जिक्र अज़कार हो जाए। हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हम अपने मजहब से कितने प्यार करते हैं, आइए मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो रब अगर जब पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं है, इसलिए कि कोई आगे में आवाम और खास का अकीदा क्या था 1857 से पहले उनको और उसको आप खूब देखे और उसको समझते चले कि आवाम और खास जो थे ये कौन थे, ये बादशाह लोग थे और शाहजहां का दौर था। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि एक मस्जिद है, अर्श आज़म में ख्वाब में देखा कि वही मस्जिद मुझे तामीर करनी है, वही मस्जिद मुझे बनानी है। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद फिर क्या होता है, शाहजहां ने ख्वाब में कहने के बाद फिर बादशाहों को ये कह दिया और सारे बल्कि सारे इंजीनियरों को ये ऐलान कर दिया कि भाई सब आओ और मस्जिद बनाना तामीर करना शुरू कर दो, सब मस्जिद बनाओ। अल्लाहु अकबर। सब आने के बाद अपने अपने तौर पर सब मस्जिद का नक्शा बनाता, लेकिन अपने दिमाग लगाता, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। शाहजहां बादशाह आता, सबका रिजेक्ट कर देता, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। अल्लाहु अकबर। वही दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह के वली मखजूम बैठते थे, ये चांदनी चौक जहां दिल्ली में है और जामे मस्जिद के और उस चांदनी चौक के पास एक इंजीनियर था, वो बहुत परेशान था और कहने लगा कि बेटा तू क्यों परेशान है इतना। अल्लाहु अकबर। उस मखजूम ने कहा तुम क्यों इतना परेशान हो, क्या बात है। और कहने लगा देखिए ना, एक बादशाह है, पता नहीं उन्होंने ख्वाब में कौन सा मस्जिद का नक्शा देखा है, हम लोग बनाते हैं वो रिजेक्ट कर देता है, वो उसको फेल कर देता है। अब बताओ ख्वाब मैं देखो मस्जिद का नक्शा कोई और बनाए, ये कैसे हो सकता है। अल्लाहु अकबर। उस मखजूम ने कहा उसको जो नक्शा पसंद आएगा ना वो मैं जानता हूँ, तुम आओ। आने के बाद उस वो मखजूम उस इंजीनियर के सर पे चादर रखता है और रखने के बाद वो क्या देखता है, मुशाहिदे में अल्लाहु अकबर अर्श आज़म में पहुंच गया है और देख रहा है कि एक खूबसूरत मस्जिद है और उसका नक्शा जल्दी जल्दी से वो बनाने लगता है और बनाने के बाद जब नक्शा पूरा हो जाता है उसके बाद फिर जब चादर हटा लिया वो मखजूम फिर वो इंजीनियर कहता है हजरत मैं कहाँ था, आप बताए तो सही। कहा कि ये छोड़ो, मैं तुम कहाँ थे ये मत पूछो, तेरा काम हो गया, जब तू बादशाह को पेश करके आ। अल्लाहु अकबर। वो इंजीनियर बादशाह के पास जाता है और कहता है देखिए ये आपको पसंद है या नहीं। वो शाहजहां बादशाह कहते हैं हाँ हाँ यही वो
नक्शा है जिसको मैंने ख्वाब में देखा है, तूने ये नक्शा लाया कहां से, तूने ये नक्शा बनाया कहां से? अल्लाह अकबर। वो इंजीनियर कहते हैं अब मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं लाया कहां से? आप मुझे ये ना पूछे, आप ये बताएं कि आपको पसंद है या नहीं। अल्लाह अकबर। इंजीनियर और बादशाह कह रहे हाँ मुझे पसंद है, यही नक्शा है। अब तामीर मस्जिद होने लगी। अल्लाह अकबर। लेकिन उस वक्त एक बात और ये भी हुई, शाहजहां बादशाह ने कहा उस मस्जिद के जो है बुनियाद संगे बुनियाद वही रखेगा जिसके बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज फौत ना हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक हो जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। अल्लाह अकबर हो। और उसके बाद फिर शाहजहां बादशाह ने कहा जिसके बालिग होने से लेकर हो असर और इशा की सुन्नत खैर मुअक्कदा भी ना छूटी हो। अल्लाह अकबर हो। फिर उसके बाद शाहजहां बादशाह ने कहा वो मस्जिद का संगे बुनियाद वही रखेगा जिसकी कभी अल्लाह अकबर हो एक वक्त की नमाज ना छूटी हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद शाहजहां बादशाह ने कहा क्योंकि ये मस्जिद हमारे लिए निजात का जरिया होगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या होता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए ना उनकी कभी असर की सुन्नत खैर मुअक्कदा भी छूटी है। आज मुसलमानों का आप कहते हो हम कल बादशाह थे और आज बादशाह नहीं है, वजह क्या है? कल के मुसलमान जो थे तुम नमाजों के जब जितने पाबंद थे तो उस वक्त तक तुम बादशाह थे। जब से तुमने नमाजों को तर्क करना शुरू कर दिया तुम्हारे हाथों से बादशाह चली गई। आप कहते हो कल का मुसलमान बादशाह थे आज हम बादशाह नहीं है, वजह यह है इसलिए कि अगर तुम कल का मुसलमान हो बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था और दीन से मोहब्बत भी करता था। इसलिए लोगों अगर अल्लाह ने आज थोड़ी सी दौलत दी है तो चढ़ती है, हम गुनाहों के अड्डे आबाद करते हैं, हम शराब के अड्डे आबाद करते हैं। अगर स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी रात हो ज़िना के मनासिर देखकर हम अपनी रात को बिता देते हैं। इसलिए लोगों अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, अगर तुम्हें फलाह चाहिए तो किसी और के तरफ न जा बल्कि वो रब्बे कदीर को पुकार ले। वो रब्बे कदीर तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा, मरने के बाद जन्नत का मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये है आज का मुसलमान ना अमल का मजबूत है ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया है कि जुमा के दिन जाता है 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाता है और अकीदा ऐसा हो गया है जिसको अल्लाह अकबर पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता वो भी कहता है नबी मेरी तरह है, वो भी कहता है नबी मेरी तरह है। अरे नबी तेरी तरह कैसे हो सकता है? कहते हैं कि ये जाहिरी की बात है। अरे जाहिरी की बात तो कहते हैं बल्कि अल्लाह अकबर अब जरा सोचो तो सही, बल्कि हम हज़रत आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं और जब जानता ही नहीं है तो रब ही जानता है। अल्लाह अकबर। कल का मुसलमान कब तक कामयाब थे? जब तक तुम्हारे अंदर अय्याशी नहीं थी, जब तक तुम्हारे अंदर खौफात नहीं थे, जब तक तुम्हारे अंदर हो अल्लाह अकबर हो नमाज के तुम पाबंद थे, जब तक कि तुम्हें शरीयत मुतहरा पर अमल करते थे, जब तक तुम्हारे घर के दिनों में मस्जिदों में कुरान की तिलावत होती थी, तुम्हारे घरों में रोजाना तिलावत कुरान होते थे और हाफिज़े कुरान बनते थे, आलिम दीन बनते थे, तब तक तुम कामयाब थे।
अल्लाह अकबर। आज मालदार कहकर अपने हर एक मालदार अपने बच्चे को डॉक्टर पे बनाना चाहता है, इंजीनियर पे बनाना चाहता है, प्रोफेसर पे बनाना चाहता है, लेकिन आलिम दीन बनाना नहीं चाहता। क्यों? कि कौम का मिजाज बन गया है। आलिम बन के से इमामत तो करेगा, मस्जिद की इमामत तो करनी पड़ेगी। अरे किसने कह दिया आलिम बनकर सिर्फ मस्जिद की इमामत जरूरी है? अरे आलिम अगर डॉक्टर बन जाए, आलिम अगर इंजीनियर बन जाए, आलिम अगर प्रोफेसर बन जाए, आलिम अगर IAS बन जाए, क्या नहीं बन सकते? 1857 से पहले कोर्ट का, अदालत का चीफ जस्टिस के फैसले हक खैराबादी की शक्ल में वो आलिम भी थे, वो जज भी थे, वो हाफिज कुरान भी थे। अल्लाह अकबर हो। और बल्कि फैसले हक खैराबादी ने अपने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल कर बाहर करने का फतवा जिस फैसले हक खैराबादी ने दिया, वो आलिम भी थे, वो जज भी थे, वो हाफिज कुरान भी थे, और अदालत में बैठ कर हो ज़ोहर से पहले आप फैसले करते, और जब अज़ान ज़ोहर की ज़ोहर का वक्त होता तो अल्लाह अकबर हो, उसके बाद आप नमाज ज़ोहर पढ़ाते, अल्लाह अकबर हो। और खानका के शेख तरीक़त थे। और तुम्हारी हिस्ट्री क्यों बदल दिया गया? तुम्हारी तब्दीलियां क्यों, तुम्हारी तारीखें क्यों बदल गई हुई? इसलिए हिंदुस्तान में इस तरीके के हीरे जवाहिरात थे। अल्लाह अकबर हो, ताकि तुम हो, ताकि तुम्हारे जो है अल्लाह अकबर हो, उसके बाद तुम है। ये तुम्हारी तारीख इसलिए बदली गई, तुम्हारी हिस्ट्री को इसलिए तब्दील किया गया ताकि तुम पीछे मोड़ कर ना देख सको। तुम्हारी तारीख कितनी अच्छी है, तुम्हारी तारीख कितनी हंसी है। अल्लाह अकबर हो। बहरहाल हो, अर्ज कर रहा था, शाहजहां ने कहा कि असर और ईशा की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी कभी तर्क नहीं हुए, कभी ईशा और सुन्नत आसिर की सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छूटी। अल्लाह अकबर। अमल ऐसा है, आप बताओ जब तक माल हो, अरे आप बताएं माल जब आता है ना तो पहले हम मस्जिदों से दूर होते हैं, और जब माल आता है ना हम अल्लाह के घर से दूर होते हैं। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह दौलत दे, जो अल्लाह रोजी देना जानता है वो रोजी छीनना भी जानता है। जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो बरकतें देना जानता है, वो बरकतें तुमसे लेना भी जानता है। इसलिए गुनाह करके अल्लाह अकबर हो, गुनाह करके अल्लाह को नाराज न करना, पाप करके अल्लाह को नाराज न करना। इसलिए अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें कामयाबी की मंजिल जाना है, तो किसी और के फरमान पे अमल न कर, वो रब्बे कदीर के फरामीन पर अमल कर ले। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी कामयाबी अता करेगा, मरने के बाद जन्नत का मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसे ही आप लोग मोहब्बत से सुने तो थोड़ी देर और मैं सुनाने का जो है कि शौक और जज्बा होगा। हज़रत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, उसके बाद शाहजहां ने कहा, लोगों ने कहा कि ये मस्जिद की संगे बुनियाद के लिए जब इतनी सख्त कैद लगाई है, अब इफ्तिताह के लिए पता नहीं खुदा जाने कितनी सख्त कैद लगाएगा जी। और उसके बाद कहने लगे कि इस मस्जिद का इफ्तिताह और आपने मस्जिद के रूटे पर मुसल्ला बिछाकर आप खड़े होकर 2 रकात नफल नमाज अदा की, और अदा करने के बाद आपने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख करके कहा, या अल्लाह मेरा काम था मस्जिद बनाना, मैंने तो मस्जिद बना दिया, अब इसको आबाद करना कि मैं इसको आबाद रखूं ये मेरे जिम्मे पर नहीं है। और ये मस्जिद की इफ्तिताह
उस वक्त होगी जब आप यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे ये मस्जिद में ताला लगी रहेगी। अल्लाह अकबर, ये कब की बात है? ये 1857 से पहले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1200 साल विसाल फरमाने के बाद ये शाहजहां का अकीदा है। अगर मैं दिल्ली से बुलाऊं हुजूर को तो हुजूर जरूर आ जाएंगे। ये शाहजहां का अकीदा था, ये अवाम का अकीदा था, ये खास का अकीदा था। कब तक? आज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अकीदा सहारनपुर का नहीं है, ये अकीदा अल्लाहु अकबर कादियान का नहीं है, ये अकीदा है कहाँ का? बरतानिया का है, इंग्लिस्तान का है। इसलिए लोगों खुदा कहते नहीं बनते, जुदा कहते नहीं बनते। इसलिए लोगों अगर तुम्हें अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में अगर तुम्हें झुकने की तौफीक मिली है तो अल्लाह की इबादत करो। इसलिए लोगों आज लोग कहते हैं बेटी पढ़ो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले बेटी पढ़ा कर भी दिखाया, बेटी बचा कर भी दिखाया है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद शाहजहां ने सुबह को हुआ और सुबह को हौज में पानी डालता, फिर निकालता और फिर हौज में पानी भरता। उसके बाद इसको मैं दलील के साथ मुज़य्यन के साथ मैं बता दूं। फिर शबे जुमा हुए और जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पे आप तशरीफ लाए और लाने के बाद आपने वजू किया। लेकिन हुजूर को वजू की जरूरत क्या? आपने वजू किया और वजू करने के बाद फिर आप गुस्ल किए और एक रास्ते से आप जिस रास्ते से निकले हैं और शाहजहां बादशाह ने ये ऐलान कर दिया, लोगों आज से जुमे की नमाज पढ़ना तुम लोग शुरू कर दो। कहे उलमा ने बाजू पकड़ लिया, बादशाह आपने जो शर्त लगाई है जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी तब तक अल्लाहु अकबर इस मस्जिद में नमाज न पढ़ी जाएगी। और शाहजहां बादशाह कहते हैं क्या ये नहीं देखते खुशबू आ रही है? कहा हाँ खुशबू तो आ रही है, मैं तो जानता हूँ। कहा कि हुजूर आ गए हैं। उलमा ने कहा बादशाह उलमा को कोई दलील चाहिए। कहा कि चलो जहाँ हुजूर बैठे और बैठकर वजू कर रहे थे आज भी आप दिल्ली की जामे मस्जिद में जाए जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वजू फरमाया है, वहाँ पे जाली लगा दी गई है और वहाँ पे फारसी में ये शेर लिख दिया गया है, ये जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजू करने की जगह है और यहाँ पे उसके पास कोई वजू नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर है। ये किन लोगों का अकीदा था? ये अवाम का और खास का अकीदा था। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर क्या होता है? जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आया और एक दूसरे में तफरके फितने पैदा किए हैं। अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं इत्तिहाद की बात करो, इत्तिहाद की बात करनी है तो अगर मिसाल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ, अगर एक इंसान के 10 बेटे हो, एक शादी करके गया अलग हो, दूसरा भी शादी करके गया अलग हो, तीसरा भी शादी करके गया अलग हो और चौथा भी शादी करके गया अलग हो, पांचवा भी शादी करके गया अलग हो, छठा भी शादी करके गया अलग हो, सातवां भी शादी करके गया अलग हो, आठवां भी शादी करके गया अलग हो और नौवां भी शादी करके गया अलग हो। अब एक जो बेटा है ना, बाप के पास लोग आते हैं और पंच आते हैं ना, कहते बेटा इत्तिहाद करो। अरे वो क्या इत्तिहाद की बात करेगा? इत्तिहाद की बात करनी है बोल उन बदबख्तों से जो माँ बाप के घर छोड़ के गए हैं। लौट चलो पुराने घर की तरफ जो 1857 से पहले बना है, वो घर की तरफ लौट। क्या वो माँ का घर छोड़ दे? क्या वो बाप का घर छोड़ दे? क्योंकि सहाबा अहले सुन्नत के मानने वाले थे, अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे, हुजूर के तबर्रुकात के कायल थे, हुजूर के वसीले के कायल थे। अब बताओ लोगों, अगर एक इंसान हो, अगर दुल्हा ऐसा हो, चले तो अली का चलना याद है और बैठे तो अली का बैठना याद है और जब दुल्हन ऐसी हो चले तो फातिमा का
चलना याद आए, बैठे तो फातिमा का बैठना याद आए। और जब ऐसे दुल्हा और ऐसी दुल्हन की गोद में जब कोई बच्चा परवरिश पाता है तो वो जमाने का गौसे आजम बन जाता है, वो जमाने का आशिक़ मुस्तफा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको हक बोलने और हक पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।